السلام علیکم، میں بی این نیوز کے ساتھ میں ہوں عرفان امتیاز۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں بتائیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر عسکری قیادت کو قوم کو مبارکباد۔ عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر پاک فوج کی اعلیٰ قیادت نے قوم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی ہے۔ ISPR کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے قوم کو عید کی مبارکباد دی اور ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ISPR کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی، ایئر چیف اور نیول چیف نے بھی قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی۔ عسکری قیادت نے اس موقع پر ملک میں پائیدار امن، قومی یکجہتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا۔ مسلح افواج پاکستانی قوم کے غیر متزلزل عزم کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں اور وطن کی سلامتی کے لیے قوم کی جرأت و قربانیوں کو قادر کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد سے وزیر اعظم اور آرمی چیف کی خصوصی ملاقات ہوئی ہے۔ مکہ مکرمہ میں ہونے والی ملاقات میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار، چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر داخلہ سید محسن نقوی اور وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی موجود تھے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلیمان عبدالعزیز سے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات میں اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان گہرے اسٹریٹجک اور برادرانہ تعلقات کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شاہ سلیمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلیمان کو عید کی مبارکباد پیش کی۔ ناظرین، شہباز کی قیادت میں پاکستان نے جنگ جیتی۔ عاصم منیر فیلڈ مارشل کے عہدے کے حقدار تھے۔ نواز شریف نے لندن میں نماز عید کے بعد لیگی کارکنوں سے گفتگو کی اور کہا فیلڈ مارشل کی بہترین جنگی حکمت عملی نے بھارت کے خلاف فتح دلوائی اور سید عاصم منیر فیلڈ مارشل کے عہدے کے حقدار تھے۔ آرمی چیف نے بھارت کو شکست دی۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان درست سمت میں جا رہا ہے اور شہباز شریف نے پاکستان کی معیشت کو بہت بہتر کر دیا ہے۔ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب حکومت نے متعدد نئے منصوبے دیے۔ وہ پنجاب عوام کی بہتری کے لیے انتھک محنت کر رہی ہیں اور سنبھڑیال میں بڑے مارجن سے فتح حکومت پر عوام کے اعتماد کا اظہار ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے لندن میں نماز عید کے بعد نون لیگ کے کارکنوں سے ملاقات کی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو کی صدر ٹرمپ سے پاک بھارت مذاکرات میں کردار ادا کرنے کی اپیل۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے واشنگٹن میں امریکی انڈر سیکرٹری ایلیسن اور قانون سازوں سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ دہشت گردی سمیت تمام مسائل پر مذاکرات کے لیے تیار ہے، جبکہ بھارت کی جانب سے پانی بند کرنے کی دھمکیاں وجودی خطرہ اور جنگ کے مترادف ہیں۔ بلاول نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو مذاکراتی ایجنڈے میں شامل کیے بغیر خطے میں پائیدار امن ممکن نہیں۔ بھارت جنوبی ایشیا میں خطرناک رجحان قائم کر رہا ہے اور 1.70 کروڑ انسانوں کو غیر ریاستی عناصر کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ بلاول بھٹو نے بھارتی سپر سونک میزائل کے ممکنہ استعمال پر تشویش ظاہر کی ہے اور کہا کہ میزائل حملے میں فیصلہ کرنے کے لیے صرف 30 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر آئندہ جنگ ہوئی تو ٹرمپ کے پاس بھی مداخلت کا وقت نہیں بچے گا۔ Diplomacy. And just like the United States and President Trump played a role in encouraging us to achieve this ceasefire, I believe that they should play their part in encouraging both sides to engage in a comprehensive dialogue. So Pakistan, I think that the fate of 1.7 billion people in our two great nations should not be left in the hands of these nameless, faceless, non-state actors. And this new normal that India is trying to impose on the region, that if there's a terrorist attack anywhere in India, you don't have to provide a shred of proof, but you go straight to war. And the law of reciprocity means that if there's a terrorist attack in Pakistan, we have to do the same. And that's reduced the threshold between military conflict between two nuclear armed states. Sort of leaving. President Trump has helped avert a very dangerous conflict where the escalation ladder was going up far too fast. India fired nuclear-capable missiles, dual-use missiles into Pakistan. Sure, they didn't have nuclear weapons on them, but that's like a 30-second timeline for Pakistan to decide that is this a nuclear-armed missile coming to you or not. And you look at the حکومت کے دعوے دھرے رہ گئے۔ ترقی کی رفتار توقع سے کم، گندم، چاول اور کپاس سمیت متعدد فصلوں کی پیداوار ہدف سے کم رہی۔ رواں مالی سال کے اقتصادی سروے کے خدوحال سامنے آ گئے۔ اقتصادی ترقی کی شرح 3.6% کے بجائے صرف 2.7% رہی۔ زرعی شعبے کی پیداوار میں شدید کمی، 2% ہدف کے برعکس پیداوار صرف 0.6% رہی۔ گندم کی پیداوار میں 9% کمی ہوئی، چاول کی پیداوار میں 1.5% اور مکئی کی پیداوار 15% کم ہوئی۔ کپاس کی پیداوار میں شدید کمی ریکارڈ کی گئی اور ہدف سے
38% कम रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पैदावार 4.4% के बजाय 1.3% रही। सर्विस सेक्टर की तरक्की का हदफ भी पूरा न हुआ और 4.1 के हदफ के बजाय सर्विस सेक्टर की तरक्की की शरह 2.9% रही। सनती पैदावार हदफ से बढ़ गई और 4.4 के बजाय 4.8% रिकॉर्ड की गई। आवाम पर भारी बोझ के बावजूद हुकूमत टैक्स का हदफ हासिल करने में नाकाम। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक टैक्स वसूलियां हदफ से भी कम रहीं। 10 माह के दौरान FBR की टैक्स वसूलियां 9,300 अरब रुपये रहीं। 9 माह में मजमूई हुकूमती आमदनी 13,369 अरब रुपये रही। 9 माह में अखराजात 16,337 अरब रुपये रहे। माली साल के 9 माह में बजट खसारा 2,970 अरब रुपये रहा। 9 माह में प्राइमरी बजट सरप्लस 3,468 अरब रुपये रहा। मुल्क भर बैरूनी कर्ज 131 अरब डॉलर से बढ़ गया। ज़र मुबादला के ज़खायर 15.6 अरब डॉलर तक पहुंच गए। 9 माह में गैर मुल्की कर्ज पर 4 अरब डॉलर सूद की अदायगियां की गईं। नाज़रीन, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में 534% इजाफा, तनख्वाह 13 लाख मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह 2,05,000 रुपये थी। तनख्वाह में इजाफा 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने तनख्वाह में इजाफे से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत ने इससे कबल अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर की माहाना तनख्वाह में 5,19,000 रुपये इजाफे की मंजूरी दी थी। विफाकी बजट 2025-26 में सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाह में इजाफे के लिए 4 तजावीज़ तैयार की गई हैं, जिन पर हतमी फैसला बजट से कबल काबीना इजलास में किया जाएगा। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस, जबकि ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन के लिए 15% इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। तनख्वाह और पेंशन में महंगाई के तनासब से 10% इजाफा और गुज़श्ता 2 अडहाक अलाउंसेज में से एक को बुनियादी तनख्वाह में ज़म करने की भी तजवीज़ दी गई है। आर्म फोर्सेज को कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम से मुस्तस्ना रखने की भी तजवीज़ दी गई है। स्वीडन में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व खरोश से मनाई गई। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी अपनी मसाजिद में नमाज ईद अदा की। मजीद अहवाल जानते हैं जुबैर हुसैन की रिपोर्ट में। यूरोप के दीगर ममालिक की तरह स्वीडन में भी आज ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई गई। इस मुबारक मौका पर फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों और वतन अजीज पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए खसूसी दुआएं की गई। दावत इस्लामी के फैज़ान कुरान कल्चरल सेंटर मालमो स्वीडन में खिताब करते हुए इमाम अरशद ने फरमाया कि ईद उल अज़हा का ये त्यौहार मुसलमानों के दरमियान एसार, कुर्बानी और भाईचारे के जज्बात को फरोग देता है। ईद उल अज़हा के मौका पर दावत इस्लामी स्वीडन के ज़ेर तमाम गौतमबर्ग में भी एक अजीमुशान इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया गया था और आने वाले बच्चों को तोहफे भी पेश किए गए। मजमूई तौर पर स्वीडन में ईद उल अज़हा का दिन मुसलमानों के लिए इत्तेहाद, कुर्बानी और खुशी का पैगाम लेकर आया। कैमरा टीम के साथ जुबैर हुसैन, स्वीडन। नाज़रीन, बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में ईद उल अज़हा का त्यौहार मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। तफसीलात काजी कामरान की रिपोर्ट में। बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड समेत मुल्क भर में ईद उल अज़हा इंतहाई अकीदत, एहतराम और मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाई गई। इस साल पूरे बरतानिया में ईद उल अज़हा एक ही दिन मनाने का एहतमाम किया गया, जिसमें लाखों मुसलमानों ने शिरकत की। ब्रेडफोर्ड की मसाजिद और इस्लामी मराकज़ में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मुनक़िद हुए, जबकि मौसम के खुशगवार होने की वजह से कुछ इलाकों में खुले मैदानों और पार्क में भी नमाज अदा की गई। उलमाए किराम ने अपने खुतबात में सुन्नत इब्राहिमी की अहमियत पर रोशनी डाली और मुस्लिम उम्मा को इत्तफाक व इत्तेहाद की ताकीद की। ईद के मौका पर खुसूसी दुआओं में दुनिया भर में अमन व सलामती के साथ साथ फ़लस्तीन और कश्मीर की आज़ादी के लिए भी दुआएं मांगी गई। इस मौका पर शहर भर में मजहबी रवायात का खास ख्याल रखा गया और ईद की खुशियां इज्तिमाई तौर पर मनाई गई। कैमरा टीम के साथ काजी कामरान, ब्रेडफोर्ड। बरतानिया भर में उम्मत मुसलमान ने ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई। इस मौके पर मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मुनक़िद हुए, जिनमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से नासिर महमूद की रिपोर्ट में। बेलग्रेव रोड जामे सेंट्रल मस्जिद, हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट और जामे मस्जिद कादरिया ट्रस्ट में बड़े इज्तिमात मुनक़िद हुए, जहां उम्मत मुस्लिमा की बड़ी तादाद ने भरपूर शिरकत की। चेयरमैन जामे मस्जिद कादरिया ट्रस्ट पीर मोहम्मद तैयबुर रहमान कादरी ने फलसफा कुर्बानी और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि ईद उल अज़हा न सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी का दिन है, बल्कि ये हमें एसार, कुर्बानी और अतात का दर्स भी देती है। शरीयत ने इबादत के साथ ईदों को जोड़ा है। ईद उल फितर की जो ईद है, इसको रमज़ानुल मुबारक के साथ जोड़ा है कि उस इबादत के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ईद उल फितर अता फरमाई, और हज की इबादत के बाद अल्लाह ने ईद उल अज़हा
की दौलत अता फरमाई। उनका मजीद कहना था, कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं, बल्कि अपनी अना, हिर्स और दुनियावी मफादात को कुर्बान करके रब की रजा हासिल करना असल मकसद है। I would like to wish the entire Muslim Ummah a very happy Eid Mubarak. Alhamdulillah, in the United Kingdom, we all united and we are celebrating Eid on one day. इस मौका पर मुख्तलिफ मसाजिद में ईद के इज्तिमाअत के बाद कम्युनिटी की जानिब से मेहमान नवाजी का मुजाहरा करते हुए खुसूसी ईद मिलन तकारीब और इज्तिमाई खानों का भी एहतमाम किया गया, जिसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम शहरियों ने यकसां तौर पर शिरकत की। मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। पुलिस और मुकामी इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए थे। मसाजिद के रजाकार भी सिक्योरिटी और ट्रैफिक की रवानी में इंतजामिया की मदद करते नजर आए। बरतानिया में मुकीम मुसलमानों ने ईद के मौका पर अपने अजीज व अकारब और जरूरतमंदों को भी याद रखा। इस मौका पर कुर्बानी का गोश्त मुस्तहिकीन में तकसीम किया गया और कई फलाही इदारों ने इस सिलसिले में खसूसी मुहिमात भी चलाई। नासिर महमूद, ABN न्यूज़। यूके के इलाके कवेंट्री जामे मस्जिद नूरुल इस्लाम ईगल स्ट्रीट में ईद की नमाज अदा कर दी गई, जिसमें फर्जंदान इस्लाम ने कसी तादाद में शिरकत की। नमाज की इमामत हजरत मौलाना जफर सदीकी ने खुतबा में उन्होंने सुन्नत इब्राहिमी पर भी रोशनी डाली। जामे मस्जिद नूरुल इस्लाम में ईद उल अज़हा की नमाज अदा कर दी गई, जिसमें कसी तादाद में फर्जंदान इस्लाम ने शिरकत की और मौलाना जफर सदीकी ने सुन्नत इब्राहिमी पर रोशनी डालते हुए कहा, कुर्बानी का मकसद खुद को अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे करना, कुर्बानी का मकसद अपने ख्वाहिशात और मफादात को आला मकसद के लिए कुर्बान करना। हमें आज के दिन इस बात का अहद करना चाहिए कि हमें हर वक्त अल्लाह ताला की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस मौके पर मौजूद नमाजियों ने कहा कि आज का दिन जहां कुर्बानी का दिन है, वहां अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करने का भी दिन है, ताकि फ़लस्तीन को आज़ादी नसीब हो। आखिर में उम्मत मुसलमान और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गईं। यूरोप के दिगर मालिक की तरह स्वीडन में भी आज ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। स्वीडन में मुकीम दुनिया के दिगर मालिक के मुसलमानों की तरह स्वीडिश पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी अपनी मसाजिद में नमाज ईद अदा की। इस मौके पर फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों और वतन अजीज़ पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गई। फैज़ान कुरान कल्चरल सेंटर स्वीडन में खिताब करते हुए इमाम अरशद का कहना था कि ईद उल अज़हा का यह त्यौहार मुसलमानों के दरमियान एसार, कुर्बानी और भाईचारे के जज्बात को फ़रोग़ देता है और आज स्वीडन के मुसलमानों में भी यही जज्बात नुमायां तौर पर नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने ईद की नमाज के बाद एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। यूरोप के दिल हंगरी के दाल हुकूमत बुदापेस्ट में ईद उल अज़हा का मुक़द्दस त्यौहार मजहबी अक़ीदत, रूहानी जोश और बैन सकाफ़ती हम आहंगी के हसीन इम्तज़ाज के साथ मनाया गया। बुदापेस्ट की मरकज़ी जामे मस्जिद में हज़ारों फ़र्जंदान इस्लाम ने ईद की नमाज अदा की। दो बड़े और पुरअमन इज्तिमात का इनेकाद किया गया ताकि हर नमाजी को सहूलत मुयसर हो। पाकिस्तानी कम्युनिटी, तलबा, ख़ातीन और बच्चों ने भरपूर शिरकत की, जबकि मस्जिद इंतज़ामिया ने तमाम इंतज़ामात अपनी मदद आप के तहत इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में मुकम्मल किए। नमाज के बाद ईद मिलन तकारीब, रिवायती गले और ईद का तबादला किया गया। इत्तेहाद और भाईचारे की दिल को छू लेने वाली झलकियां सामने आई। बुदापेस्ट में बसने वाली मुस्लिम कम्युनिटी की भरपूर यकजहती का पैगाम बन गई। यूनान में भी ईद उल अज़हा मजहबी जोश और खरोश के साथ मनाई जा रही है। एथेंस में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा एथेंस की सरकारी जामे मस्जिद में हुआ, जहां हज़ारों मुसलमानों ने ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। यूनान में मुख्तलिफ मुस्लिम मालिक के सफ़ीरों समेत मुख्तलिफ मालिक से ताल्लुक़ रखने वाली कम्युनिटीज़ के मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। एथेंस की सरकारी जामे मस्जिद में नमाज ईद के 3 बड़े इज्तिमात का अहतमाम किया गया था। मुख्तलिफ मालिक से ताल्लुक़ रखने वाली ख़ातीन और छोटे बच्चों की भी बड़ी तादाद ने भी सरकारी मस्जिद में नमाज ईद अदा की। यूनानी हुकूमत की तरफ से एथेंस की सरकारी जामे मस्जिद में बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। पूरे यूरोप में एथेंस की सरकारी जामे मस्जिद वाहिद मस्जिद है जिसके तमाम अखराजात यूनानी हुकूमत खुद बर्दाश्त करती है। सरकारी जामे मस्जिद के अलावा एथेंस में मुख्तलिफ तंजीमों के मराकज़ में भी नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए, जहाँ यूनान में मुकीम हज़ारों पाकिस्तानियों ने ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। यूनान के सबसे बड़े जजीरा करीती समेत मुख्तलिफ जज़ायर पर मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से नमाज ईद अदा करने के लिए बड़े इज्तिमात हुए। कराची के साइट एरिया के इलाके में पुलिस मुकाबला, 2 एहलकार जख्मी हो गए। मुसल्लह मुलजमान शहरियों से लूट मार कर रहे थे और वारदात के दौरान पुलिस मौके पर पहुंच गई। फायरिंग के तबादला में 2 एहलकार जख्मी हो गए।
नाज़रीन, चीन ने पाकिस्तान को 5th जनरेशन J-35 स्टेल्थ तैयारे और जदीद तरीन HQ-19 डिफेंस सिस्टम देने की पेशकश कर दी है। चीन की जानिब से 40 5th जनरेशन J-35 स्टेल्थ तैयारे KG-500 अवाक्स और HQ-19 डिफेंस सिस्टम की पेशकश शामिल है। हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक अज़रबाईजान ने 40 JF-17 तैयारों की खरीदारी के लिए $2 अरब की सरमायाकारी और $4.6 अरब के दिफाई माहिदों पर भी दस्तखत कर दिए। चीन से $3.7 अरब कर्ज की मौखिर अदायगी, जबकि हवावे के ताउन से पाकिस्तानियों को AI और IT में तरबियत दी जाएगी। नाज़रीन, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी ताकत है। हमने अपने दिफा में भारत को भरपूर जवाब दिया। भारत ने हमारी तहम्मुल और बर्तबारी की पॉलिसी को कमज़ोर समझा। हमने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की है। आलमी बरादरी ने हमारे मौक़िफ़ की तायद की। भारत का झूठा बयानिया मुस्तरद हुआ। भारत की आबी जारहियत का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। हम अमन के लिए हर फोरम पर बातचीत के लिए तैयार हैं। हमारे सिफारती वफूद दुनिया के सामने भारत का मकरूज चेहरा बेनकाब कर रहे हैं। सेनेटर शरीर रहमान का कहना है कि भारत खुद को दायमी जंग में मुब्तला रखना चाहता है तो ये इसकी अपनी पॉलिसी है। पाकिस्तान दायमी अमन का ख्वाह है। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने मज़ीद कहा कि इलाकाई या आलमी ताकतें इस्तेहकाम को जंग से नहीं बल्कि अमन के जरिए कायम रखती हैं। भारत इस रिवायत से हट रहा है। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की भारतीय पॉलिसी एक खतरनाक रिवायत कायम कर रही है। दुनिया को मुकम्मल फिल्म के इंतजार के बजाय इस ट्रेलर से सबक लेकर बर वक्त किरदार अदा करना चाहिए। Come out with 87-hour war. Pakistan is now not going to be defined by terrorism or war. If India chooses to do that, that is India's own obsession with perpetual war. We don't like to see perpetual war. We're looking for the Indus Waters Treaty to be restored. There is no provision in the law for this treaty being put in abeyance, and we see attacks on water, weaponization of water as an act of war. न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।